I welcome everyone to the 11th lecture for metals and non-metals. Today is 11th September and today we have the 11th lecture. 10th lecture. This should not move. Okay. The 10th lecture was the discussion. Discussion किया था हमने 10th lecture में. So essentially this is the 10th lecture, but that's okay. So now we have to discuss extraction of metals, high reactive. तो अब तक हम लोगों ने metals and non-metals में क्या पढ़ लिया है? Till now we have discussed concentration या फिर जिसको हम बोलते हैं separation. We have discussed the separation part and we have discussed the concentration part. Separation और concentration एक ही चीज है. उसमें लगने वाले processes हमने discuss किए हैं. Gravity is one of the methods which we use to separate constituents. Magnetic separation एक होता है. Solubility in water, hydraulic method हमने discuss किया था. And also we have discussed solubility in oil, जिसको froth flotation हम लोगों ने बोला था. Beyond that, there was one method of concentration of ore, and that method was leaching, जिसमें in the process of leaching, chemical reaction was taking place. Chemical reaction हो रहा है leaching में. बाकी जितने भी methods of separation है, the remaining 4 methods of separation, Wilfley table, hydraulic separation, froth flotation and magnetic method. So magnetic, hydraulic, froth flotation and the fourth one, whatever that is, ये चारों methods में physical changes हो रहे थे. Okay? Physical methods was the idea behind the 4 parts and chemical method is the idea behind the 5th part, right? उसके बाद आता है extraction वाला part. In extraction of metals, this is divided into 3 different parts. Extraction of metals, ये खुद concept 3 parts में divided है. High reactive metals, medium reactive metals and low reactive metals. Okay, so high reactive metals के बारे में हम बात करेंगे. In today's class, we will be discussing about high reactive metals. So these snapshots are taken from your state board textbook. So the students who are from state board schools, Maharashtra state board के जो students हैं, they have to learn answers for their board exam. Learn करने के लिए यही वाले points उनको learn करने हैं. Students who are from CBSE board, they just need to understand this. Learn कर लेंगे बहुत अच्छी बात है, but learn करके कुछ benefit नहीं होने वाला है क्योंकि exam में ये सब नहीं आने वाला है. NCERT textbook में बहुत limited content है metallurgy का. State board textbook में concepts कुछ ज़्यादा है, and we have to cover the union of both the textbooks. So I will be reading these snapshots and I will be explaining them line by line. So please pay attention when I am reading this. The metals at the top of the reactivity series are highly reactive. तो कोई reactivity series के बारे में हमने बात की थी. We have discussed about a particular reactivity series in which metals are placed. Hydrogen is also placed in that reactivity series. As a matter of fact, metals, non-metals सब कुछ place कर सकते हैं. वो reactivity series सिर्फ metals का नहीं है, वो reactivity series सारे elements का है. उस reactivity series में compounds नहीं present है, only the elements are present and elements are present in the periodic table. Make sense? तो जो elements periodic table में है, उन elements के regarding 3 different parts में classification किया गया है, high reactive, medium reactive and low reactive. तो उसमें से high reactive वाले जो metals है, वो high reactive वाले metals का हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. Okay, we will be discussing the extraction of metals which are highly reactive. So the metals at the top of the reactivity series are highly reactive. Their reactivity decreases down the series. Their reactivity decreases down the series. Okay, sorry, you're not audible. Guys, please raise your hands if you can hear me. जिन लोगों को मेरी आवाज क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है, बोर्ड पे ठीक से दिखाई दे रहा है, कुछ भी कंसर्न नहीं है, प्लीज अपना हाथ उठाएं. Please raise your hands. I sincerely request you to raise your hands if you can hear me properly
and you can see the PPT file shared with all of you. Okay, thank you so much. Please lower your hands. Please lower your hands. You can lower your hands now. So there is one student, sir, now you are audible. Okay, thank you. Please lower your hands. For example, potassium, sodium, aluminium are reactive metals. जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर मेटल्स है वो सारे मेटल्स क्या है, रिएक्टिव है. पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है. रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कटायंस बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. मेटल जानने का तरीका क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल. याद करो जब हमने डिस्कस किया था मेटेलिक कैरेक्टर, तब हम लोगों ने ये बताया था कि मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं. तो एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स ना होते हुए हम मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं. हम टेंडेंसी की बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, राइट. तो उसी अकॉर्डिंग अपन ये देखें कि अगर ज्यादा प्रॉपर्टीज मेटल से मैच हो रही है तो उसको मेटल बोलते हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच हो रही है तो उसको नॉन मेटल बोलते हैं. एक्चुअली ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर मेटल से मैच नहीं हो रही है तो उसको नॉन मेटल बोलते हैं. इसीलिए मैंने स्ट्रेस भी किया था इस बात पे कि उसको नॉन मेटल बोलते हैं. वो एसिड और बेस जैसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिखाए तो एसिड बोलेंगे, दूसरी कोई तो भी प्रॉपर्टी दिखाए तो बेस बोलेंगे, ऐसा नहीं है. जो प्रॉपर्टी दिखाता है वो मेटल, जो प्रॉपर्टी नहीं दिखाता वो नॉन मेटल. और मेटल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो मेटल्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एबिलिटी टू फॉर्म cations. Ability to form cations is the most important concept of metals. On the similar lines, ability to form anions will be the most important concept for non-metals. जाहिर सी बात है कि मेटल्स के लिए अगर कटायन फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है तो नॉन मेटल्स के लिए अनायन फॉर्म करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो हम स्टेटमेंट आगे पढ़ते हैं. रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कटायंस. तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले क्या रहेंगे, उनका मीडियम कैपेसिटी रहेगा. और लो रिएक्टिव वाले क्या रहेंगे, उनका लो कैपेसिटी रहेगा. लेकिन कटायन तीनों टाइप के मेटल बनाएंगे. मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है कटायन बनाने का. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल is to form cation, बट वो कटायन बनाने का टेंडेंसी कम ज्यादा हो सकता है. जिस मेटल का कटायन बनाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव मेटल, और जिस मेटल का कटायन बनाने का टेंडेंसी मीडियम लेवल का वो मॉडरेट रिएक्टिव, और जिस मेटल का कटायन बनाने का टेंडेंसी बहुत ही कम वो चीज हो जाएगी लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, नेक्स्ट. तो फॉर बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होता है, आउटरमोस्ट शेल से लूज होता है. फॉर एग्जांपल, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड्स टू गिव हाइड्रोजन गैस. रिएक्टिव मेटल्स जो रहेंगे वो डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. हाई रिएक्टिव मेटल्स बर्न बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एट रूम टेम्परेचर. दिस इज वेरी इजी. एक्सट्रैक्शन हैज टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है. वी विल बी डिस्कसिंग दैट. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मेटल्स सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स. सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. अभी सोचो, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है. अब सोडियम क्लोराइड से सोडियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड. सोडियम बाकी चीजों से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट सोडियम क्लोराइड से भी उसका एक्सट्रैक्शन हो सकता है. सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट NaCl. कहां से मिलता है, सी वाटर से मिलता है. तो इमेजिन करो, पहले सी वाटर है, सी वाटर के बाद उसको अपन ने ड्राई कर दिया, हीट कर दिया. There are some students who are disturbing. Okay, I would like to talk to someone just for a voice check. Vignesh, can you unmute? Yes, sir. Vignesh, am I audible? Yes, sir. Vignesh, can you see the screen properly? Yes, sir. Can you see that there are two reactions on the screen? One is cathode reaction and one is anode reaction. Yes, sir.
ओके, थैंक यू विघ्नेश, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। एक दो स्टूडेंट्स अपना नाम चेंज करके लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम। राघवेंद्र, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। राघवेंद्र, कैन यू प्लीज अनम्यूट? राघवेंद्र, एम आई ऑडिबल? यस सर, बट आपकी आवाज बीच बीच में बहुत मतलब चली जा रही है ऐसे सर। बीच बीच में आवाज चली जा रही लैग है। हो रही है बीच बीच में, हाँ बीच अच्छा, बीच में लैग हो रही है। ओके, अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है क्या? अभी तो शायद मैं रियल टाइम में आपसे बात कर पा रहा हूँ, राइट? हाँ सर, अभी भी हुआ था 1 सेकंड के लिए। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द क्लास। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा लिए। प्लीज रेज योर हैंड्स ओनली इफ यू हैव डिफिकल्टीज आफ्टर आई कवर वन स्लाइड। एक स्लाइड पढ़ाने दो, उसके बाद डिफिकल्टीज के लिए हाथ उठा लेना। ठीक है, तो हम नमक की बात कर रहे हैं। NaCl सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट है। ओके, NaCl इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैसे मिलता है? कॉमन सॉल्ट मिलता है सी वाटर से। सी वाटर लिया, हीट कर दिया, धूप में सुखा दिया, कॉमन सॉल्ट मिल गया, राइट? तो कॉमन सॉल्ट का अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने का मतलब क्या है? उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखें कि यहां पर क्या लिखा है? मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अभी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोल्टन एंड डिजॉल्व्ड। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी में डिसॉल्व किया है। ओके, aqueous solution means that it is dissolved in water. Molten means उसको इतना ज्यादा हीट किया कि अब वो चीज मेल्ट हो गया। हाई टेम्परेचर पे जाने के बाद वो चीज मेल्ट हो चुका है और अब उसका लिक्विड फॉर्मेट आ गया। तो सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज डिफरेंट थिंग, इट इज aqueous solution, and molten NaCl is something different. Okay guys, please give me 1 second, please give me a moment. Okay, so unfortunately I had to lock the meeting now. There were some students who were creating some nuisance. Because of this बाकी students का भी loss हो रहा है, but I am helpless at this point of time. Okay, I cannot show the PPT right now in slideshow mode, so I apologize for that. I have locked the meeting and now other students will not be able to join. So I am talking about molten and dissolved. Okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ग्रीन कलर में लिखा जा रहा है molten NaCl and aqueous NaCl. So there are two different things. One is molten NaCl and one is aqueous NaCl. Molten NaCl का मतलब है सॉल्ट लिया, सॉलिड था, NaCl लिया सॉलिड फॉर्मेट में, उसको हीट किया, हीट किया, हीट किया, हीट किया, और हीट करने के बाद एक पॉइंट आया जब वो चीज मेल्ट हो गई। सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग, तो वो वाले कंसेप्ट है मोल्टन NaCl। एक्वस NaCl क्या होता है? एक्वस NaCl मतलब सॉल्ट लिया और उसको पानी में डिसॉल्व किया। एक्वस NaCl को ही हम डिसॉल्व वाला भी बोल सकते हैं, बट मोल्टन वाला चीज डिफरेंट है। ओके, मोल्टन इज समथिंग डिफरेंट एंड एक्वस इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट यूज कर रहे हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो क्या करते हैं? उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सो इमेजिन करो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मोल्टन NaCl है। NaCl का सॉल्यूशन नहीं है, NaCl को हीट करके लिक्विड बनाया, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, लिक्विड बनाया, और लिक्विड बनाने के बाद उसको मेल्ट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड्स डाले। इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? टर्मिनल्स होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर शोन बिलो। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है। ठीक है,
Now give me 1 second. I'll try to do this as a full screen mode. Okay? Please have patience, guys. I hope that अभी problem नहीं आएगा. So yes, we are discussing about molten NaCl, dissolved and aqueous. दो अलग अलग चीजें होती है. Electrode reactions during electrolysis to get metallic sodium are shown as below. Cathode reaction and anode reaction. इलेक्ट्रॉन Na+ ने एक्सेप्ट किया, Na+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Na बन गया. Cl- ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड ओवर हियर. 2Cl- gives Cl2 plus 2 electrons and Na+ accepts an electron to forms Na. ये रिडक्शन प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. ओके, सो अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन. ये हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले, बट यहाँ पे हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक नया डेफिनेशन देखने वाले हैं. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव explained this definition to you before or not, but ये definition हम लोगों को learn करना है. Okay, oxidation means removal of electrons and reduction means addition of electrons. तो Na+ is getting reduced to sodium metal. इसको ऐसा पढ़ते हैं. Na+ का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ और Na बन गया. 2Cl- जो है 2Cl- gives Cl2 plus 2 electrons. यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ. ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए. इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने की वजह से क्या हुआ? क्लोरीन गैस एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, मॉलिक्यूल बन गया. Cl- क्या है? ये तो अनायन है, राइट? Cl- is the anion, Na+ is the cation. So Na+ plus electron gives Na and 2Cl- gives Cl2 plus 2 electrons. Okay. So now any difficulties in this slide? If you have any concerns in this slide, please raise your hands and ask me your doubt. Prathamesh Rathod, please unmute and ask me your difficulty. सर उसे मोल्टन की जगह सीधा सीधा मेल्टेड बोल देते तो क्या फर्क पड़ता था? हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता था. मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट या मेल्टेड क्लोराइड सॉल्ट एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम चीज है. थोड़ा सा इंग्लिश का लैंग्वेज का फर्क है, ग्रामर वाली चीज है, कंसेप्ट में कुछ फर्क नहीं है. ओके प्रथमेश, कमेंट. ओके, थैंक यू प्रथमेश. Anish, please ask your doubt regarding this slide. यस सर, ये Na+ जो हम E- इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं सर, तो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? हाँ, वो इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहा है? वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है. एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ. ये अपन डिलीट कर देते, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन. इमेजिन करो कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और ये कंटेनर में यहाँ पे मोल्टन NaCl है. सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टन NaCl है. अब इस कंटेनर में अपन ने क्या किया? अपन ने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई लगाया अपन ने ऊपर से. ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इसको टर्मिनल बोलते हैं. और ये टर्मिनल को ऐसे वायर से कनेक्ट किया और ये ऐसी बैटरी लगाई. फिजिक्स में सिखाते हैं ये चीज, बैटरी का सिंबल ऐसा होता है. ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटी वाली लाइन निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है. तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और निगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाते हैं, ठीक. तो ये वाला दिख रहा है, छोटी डंडी वाला, ये वाली चीज है कैथोड. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जा रहा है,
ये कैथोड है C और ये एनोड है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल एनोड, निगेटिव वाला टर्मिनल कैथोड। और ये यहाँ पे ये येलो कलर के रीजन पे क्या होगा, येलो कलर के रीजन पे Cl2 लिबरेट होगा, और ग्रीन कलर के रीजन पे क्या होगा, ग्रीन कलर के रीजन पे Na+ डिपॉजिट होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन बैटरी से आया। अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाने के लिए एक बैटरी लगाई। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही होता है पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, जिसमें एक कैथोड और एक एनोड होता है। कभी भी अकेला कैथोड या अकेला एनोड प्रेजेंट नहीं हो सकता, हमेशा पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। बैटरी का आधा टर्मिनल कभी नहीं मिलता, पूरी बैटरी होती है, पॉजिटिव एंड और निगेटिव एंड साथ में होता है। तो पॉजिटिव एंड को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंड को एनोड एंड निगेटिव एंड को बोलते हैं कैथोड। किनका डाउट, अनीश कमेंट करे। यस सर। और सर फिर वो जो इलेक्ट्रॉन जो Cl- रिड्यूस हो रहा है सर, वो फिर इलेक्ट्रॉन्स इसमें सोल्यूशन में ही रहते हैं कि मतलब सर्किट में जाते हैं? नहीं, सर्किट में जा रहे, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ नहीं सकता ना। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉल्यूशन विल बी कांस्टेंट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉल्यूशन। सोचो, सॉल्यूशन में जितने Na+ थे उतने ही Cl- रहने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज या एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज कहीं से आ नहीं सकता। एक एंड से बैटरी ने इलेक्ट्रॉन सिस्टम में डाला ब्लू कलर के डब्बे में, तो दूसरे एंड से बैटरी ने निकाल भी लिया, तभी तो सर्किट कंप्लीट हुआ और तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। अगर ऐसा नहीं होता था तो मोल्टन NaCl गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता ही नहीं था, वो तो वुड जैसा रह जाता था। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर लगा के वापस आना चाहिए बैटरी में। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फिजिक्स वालों का थोड़ा बैटरी का और अच्छा कंसेप्ट होता है, बट हमारे लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा के बैटरी में वापस आ जाए। फिजिक्स वाले एक्चुअली ऐसा पढ़ाते हैं कि इलेक्ट्रॉन वहीं पर है, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो वो ज्यादा करेक्ट कंसेप्ट है। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन पूरा चक्कर लगा के आएगा। तो सिस्टम में अगर पहले 50 Na+ और 50 Cl- थे, तो बाद में Na+ कम होंगे, Cl- भी कम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे नहीं, वो चीज मेंटेन रहेगी। अनीश कमेंट करो। यस सर। सर क्लियर हम हुआ ना अनीश? हाँ। सोल्यूशन में H2SO4 भी डालते हैं ना, डाइल्यूट? नहीं, डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालते, डालना है तो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा डालते नहीं है। वहां पे परफेक्टली मोल्टन NaCl होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि सोडियम एक तरफ डिपॉजिट हो और क्लोरीन गैस दूसरी तरह से रिलीज हो, हम यही चाहते हैं, बराबर। तो उस केस में अगर H2SO4 या दूसरी कोई चीज डाल दी तो एक तरफ हाइड्रोजन आने का पॉसिबिलिटी रहता है। तो Na+ की जगह कई बार ऐसा हो सकता है कि H+ इलेक्ट्रॉन ले ले और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाए, तो इसलिए हम H2SO4 या वाटर ये सारी चीजें नहीं डालते। अनीश यस सर। कमेंट, ओके ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। इस वाली स्लाइड पे अगर कोई डाउट है तो आप डाउट्स पूछेंगे। हर्षित खंडेलवाल प्लीज आस्क। Sir, instead of going for this much conditions like we are taking molten NaCl, can't हाँ, we take some simple conditions? सिंपल कंडीशंस मतलब क्या, व्हाट इज सिंपलर देन मोल्टन NaCl? सिंपलर देन मोल्टन NaCl इज सॉलिड NaCl, राइट हर्षित? Yes, sir, or instead taking an aqueous solution of it or dissolving it in some other solution. नहीं, so that is the problem ना, if we take aqueous solution then aqueous solution means water will also be present over there। अगर वाटर आ गया तो एक एंड पे जहां Na+ आ रहा था ना, वहां Na+ की जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, और दूसरी जगह जहां पे Cl2 हमें चाहिए वो Cl2 की जगह ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता है। तो NaCl का तो हमें जो सोडियम चाहिए था, वी वांटेड दैट सोडियम शुड बी डिपॉजिटेड, तो सोडियम डिपॉजिट करवाने के लिए उसको मेल्ट करना जरूरी है। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया तो वाटर के पार्टिकल्स ही लिबरेट होना चालू हो जाएंगे, एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ जाएगा। another thing here is, if we what will happen if we take solid NaCl? अगर हम solid NaCl लेते हैं तो उस केस में
सॉलिड NaCl में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती है. सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्यों बैड कंडक्टर है? क्योंकि कटायन और अनायन एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से बॉन्डेड है. कटायन और अनायन एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहते. लिक्विड स्टेट में वो चले जाते हैं, इसीलिए लिक्विड स्टेट लानी पड़ेगी, और लिक्विड स्टेट में भी हमें मोल्टन फॉर्म लाना पड़ेगा. हर्षित प्लीज कमेंट. Sir, but instead of water, if we are taking some another solution, so will it work? No, it will not work because whatever solution, see, there are two things over here. पहली चीज तो ये है कि अगर हम दूसरा सॉल्यूशन ले, दूसरा सॉल्वेंट ले, तो उसमें NaCl should be able to dissolve itself. तो अगर जैसे दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, one is polar solvent, another is non-polar solvent. Water is a polar solvent. तो वाटर में NaCl डिसॉल्व होता, बाकी पोलर सॉल्वेंट्स में भी NaCl डिसॉल्व हो सकता. अगर नॉन पोलर सॉल्यूशन लिया और उसमें डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो फिर वो फायदे में नहीं रहा. फिर अगर पोलर सॉल्वेंट लिया तो पोलर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इंटरफेयर करेंगे, इसीलिए मोल्टन NaCl इज द ओनली वे आउट. हर्षित कमेंट. Okay, sir. हर्षित, मैंने ये जो पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला, ये आपको समझा क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है. मोर अबाउट दिस विल बी कवर्ड इन केमिकल बॉन्डिंग. सिद्धांत प्लीज आस्क. सर इधर कैथोड पे सर रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा ना? कैथोड पे रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हो रहा है. करेक्ट. सर फिर ये हमेशा ऐसे ही होगा क्या? हाँ, ये हमेशा ऐसे ही होगा क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये हमेशा ऐसे ही होगा, बट अभी जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है कि Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na हो रहा है, तो हर बार मेटल वाली चीज कैथोड पे डिपॉजिट होगी ऐसा जरूरी नहीं है. कैथोड पे हर बार रिडक्शन होगा ये जरूरी है, एनोड पे हर बार ऑक्सीडेशन होगा ये भी जरूरी है. ओके, लेकिन मेटल हमेशा कैथोड पे ही मिलेगा ये जरूरी नहीं है. मेटल एनोड पे भी मिल सकता, नॉन मेटल एनोड पे भी, नॉन मेटल कैथोड पे भी मिल सकता, बट कैथोड रिडक्शन एनोड ऑक्सीडेशन ये चीज 100% वैलिड है. ओके सिद्धांत? यस सर. ओके, इसी के साथ और एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे. C कैथोड, R रिडक्शन, A एनोड, O ऑक्सीडेशन. तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक साथ है और वोवेल वोवेल भी एक साथ प्रेजेंट है. C एंड R आर कॉन्सोनेंट्स, A एंड O आर वोवेल्स, AEIOU. ठीक है, और सेंट्रल रेलवे से भी अपन याद रख सकते हैं. ओके, let us go ahead. Next difficulty, Shreyas Malpani please ask. सर ये अभी आपने सिद्धांत का क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ना कि एनोड पे भी मेटल बन सकता है, वो फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना. एनोड पे भी मेटल बन सकता है, ये एक बार एक्सप्लेन करो. ठीक है, उसका एक एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं. ठीक है, मैं ये बता रहा था उसमें कि एनोड के साथ ऑक्सीडेशन हमेशा वैलिड है, कैथोड के साथ रिडक्शन हमेशा वैलिड है. अब कोई इमेजिन करो हाइपोथेटिकली कोई ऐसा एलिमेंट है, इमेजिन दैट देयर इज अ पर्टिकुलर एलिमेंट. वो एलिमेंट डिपॉजिट होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, तो उसको डिपॉजिट करवाने के लिए ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा. अब ऑक्सीडेशन अगर कराना पड़ेगा तो ऑक्सीडेशन एनोड पे तो हो नहीं सकता, सॉरी कैथोड पे तो हो नहीं सकता, तो वो चीज डिपॉजिट एनोड पे ही होगा. ठीक है, जैसे HCl सोच लो, इमेजिन करो HCl. तो HCl में हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे ही आएगा एंड Cl2 एनोड पे ही आएगा, क्योंकि Cl2 बनेगा Cl- से एंड H2 बनेगा H+ से.
तो कैथोड पे रिडक्शन एंड एनोड पे ऑक्सीडेशन, ये चीज फिक्स रहने वाला है। श्रेयस कमेंट करो, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. And sir, one more question that there are 2 electrons are produced in anode reaction. So where they go? दे विल गो बैक इनटू द बैटरी। ठीक है, सब लोग इस डायग्राम को देखें, ये बैटरी है, दिस इज द बैटरी, दिस स्मॉल लाइन इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो छोटी सी लाइन है, दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द बिगर लाइन इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। नाउ दिस स्मॉल लाइन, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, कहां पे आया? कैथोड पे आया, बराबर। तो ये जो रेड कलर का टर्मिनल है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, Na+ सिस्टम में था, वो Na+ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट हो गया, तो Na+ इलेक्ट्रॉन को जाके चिपक गया, तो ये वाले टर्मिनल पे सोडियम डिपॉजिट हो गया, हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर अब एनोड साइड देखो क्या है, सिस्टम में Cl- था। अब जो वो Cl- था, वो 2 Cl- एक साथ आए, उन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर दे दिए और Cl2 गैस लिबरेट हो गया, मतलब Cl2 गैस सिस्टम से बाहर चला गया, सोडियम यहाँ पे ग्रीन कलर के रीजन में डिपॉजिट हो गया, चिपक गया उसको जाके, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन वापिस इधर से बैटरी में चले गए पॉजिटिव टर्मिनल पे। अब हमारे मन में एक डाउट ऐसा आता है कि सर ये आधा तो समझ में आ गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, सोडियम जाके चिपक गया, Cl- को क्या गरज पड़ी थी अपना इलेक्ट्रॉन देने की? तो उसका रीजन ये है कि क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव वाला है, तो ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इमेजिन करो, तो वो पॉजिटिव चार्ज कोशिश करता है कहाँ से निगेटिव चार्ज मिले, कहाँ से निगेटिव चार्ज मिले, और फिर वो Cl- से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और फिर वो Cl2 बन के रिलीज हो जाता है। श्रेयस कमेंट। Yes, sir. So, sir, whole purpose of using battery is just to make redox reactions so that we can get metal and non-metal or on either pole. Yeah. बस परफेक्ट, मेटल और नॉन मेटल दोनों अलग अलग पोल्स पे लगाना है, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शन साथ में करवानी है। तो बैटरी का पर्पस ही ये था, बैटरी का पर्पस था टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पर्पस था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को साइमल्टेनियसली कंडक्ट करवाना। श्रेयस कमेंट हो गया क्लियर? Yeah, yes, sir. ठीक है, And प्लीज sir, हाँ प्लीज। sodium metal is deposited on cathode. So, is there any adhesive force that it sticks on that? नहीं, देयर इज नो अडेसिव फोर्स एज सच, ऐसा कोई फोर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे। होता क्या है कि वो जो टर्मिनल है, उस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब उस इलेक्ट्रॉन ने Na+ को चिपका लिया, तो देयर इज नो अडेसिव फोर्स, इट जस्ट गेट्स स्टक टू द टर्मिनल, इट गेट्स स्टक टू द टर्मिनल बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज देयर ऑन द टर्मिनल। वो इलेक्ट्रॉन था इसीलिए Na+ वहां पे गया, इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो Na+ नहीं जाता। श्रेयस कमेंट। Okay, sir. Yes, Okay, sir. please mute, please lower your hand. Manmeet, please ask. Manmeet Singh, please ask your difficulty. Pare. Siddhant, please ask. सर वो कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन सर कैसे लिखना हो बताओ ना एक बार। हाँ, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन कैसे लिखना? देखो, ये यहाँ पर देखो, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। ये तो लर्न कर लेंगे अपन, CrAO, वोवेल वोवेल साथ में, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट साथ में, कैथोड रिडक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन अपन को ऐड करना है। अब हमारे पास में सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हमारे पास सिस्टम में प्रेजेंट है Na, हमारे पास प्रेजेंट है Cl-, हमारे पास प्रेजेंट है Cl2 और हमारे पास प्रेजेंट है Na सॉलिड। ठीक है, ये 4 चीजें हमारे पास में प्रेजेंट है। सर अभी आपको कैसे पता चला? तो Na नहीं लिखना था मुझे, Na+ लिखना था वहां पे। हमारे पास सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, Na+, और क्या प्रेजेंट है, Cl-, और क्या प्रेजेंट है, Cl2।
एंड वी हैव Na सॉलिड, बराबर। ये चार चीजें प्रेजेंट है। सर अभी आपको कैसे पता चला? Na प्लस और Cl माइनस तो आया मोल्टन NaCl से, ये तो मुझे समझ में आ गया। Cl2 लिबरेट करवाना है और सोडियम सॉल्ट भी बनाना है, सोडियम मेटल डिपॉजिट करवाना है, तो ये चार चीजें हमारे पास में है। तो ये चार चीजें हैं और ये कंसेप्ट है। अब आप सोचो कि ये चारों चीजों में से रिडक्शन अगर करवाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन देना है, तो सोडियम तो मेटल है, वो तो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं। Cl2 वो भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, उसको भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की जरूरत नहीं है। Cl माइनस के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, उसका तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बचा कौन? Na प्लस। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। उस लॉजिक से हमें समझ में आया कि Na बनेगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अब एनोड रिएक्शन देख लेते हैं। तो एनोड रिएक्शन पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन हटाना है, नहीं किससे हटाना है? तो Na प्लस तो चला गया, Na प्लस से Na बन गया, बचा कौन? Cl माइनस और Cl2। तो Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन हटेगा, जो निगेटिव वाली चीज है उससे अपने इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे, तो 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द concept of anode reaction. So this is cathode reaction and anode reaction. सिद्धांत प्लीज अनम्यूट। Yes, sir. क्लियर हुआ सिद्धांत? ठीक है। श्रेयस मालपानी प्लीज आस्क। Sir, in anode reaction, there is 2Cl minus. So, should there be only one chlorine ion or two chlorine ion are okay? दैट इज ओके, उतना चल जाता है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 Cl2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अगर यहाँ पे अपन Cl माइनस रखे तो इधर हाफ लिख देना और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दिस इज जस्ट अबाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। होता ये है कि अब जैसे Cl माइनस अकेला Cl2 गैस नहीं बना सकता ना, तो 2Cl माइनस लिख दिया। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो या तो नीचे की रिएक्शन को हाफ टाइम्स लो या तो ऊपर की रिएक्शन को 2 टाइम्स लो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। फिर इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहाँ लिखे, इसको नीचे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड आउट आफ्टर एडिंग द कैथोड एंड एनोड रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैंसल आउट हो जाते हैं कैथोड और एनोड रिएक्शन को ऐड करने के बाद। तो अगर कैंसिल करना है तो ऊपर वाली रिएक्शन को या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो नीचे वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दो। दोनों एक साथ मत कर लेना। श्रेयस जल्दी से कमेंट करें। सर, हाँ प्लीज गो अहेड। सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? पर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। नीचे वाली रिएक्शन में RHS में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर वाली रिएक्शन में LHS में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा एडिशन करने के बाद में। सो आइदर मल्टीप्लाई द कैथोड रिएक्शन बाय 2 और डिवाइड द एनोड रिएक्शन बाय 1, सॉरी डिवाइड द एनोड रिएक्शन बाय 2। दोनों में से एक ही चीज करना, दोनों दोनों मत करना। श्रेयस मालपानी प्लीज कमेंट। Okay, sir. Sir, can you give us another example like Al2O3? Al2O3 is not a proper example because molten chloride salt लेना है हमें, तो AlCl3 will be a good example, या फिर molten chloride या फिर molten halide, ठीक है। So think of it in this manner that molten chloride salt लेना है ना, तो Al2O3 is not a good example. Al2O3 में क्या होता है वो तो चीज अपन आगे देखने ही वाले हैं। पूरा का पूरा लेसन मतलब एक बहुत बड़ा आर्टिकल मेटलर्जी का बॉक्साइट के ऊपर बेस्ड है। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक MgBr2 लेके देख लेते हैं। MgBr2 मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड के केस में इससे हमें क्या निकालना है? Mg निकालना है और Br2 गैस रिलीज करवाना है, ठीक है। तो कैथोड वाले पार्ट पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? बिल्कुल कैथोड के साथ अपन लिख देते हैं Mg प्लस, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे,
Mg plus 2 Mg 2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स gives Mg। और एनोड के साथ क्या लिखेंगे अपन, 2Br माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं gives Br2, 2Br माइनस gives Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन एज इट इज अपन ऐड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो MgBr2 वाला एग्जांपल भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया। श्रेयस कमेंट। Oh yes sir, thank you. ठीक है, शुभम प्लीज आस्क। सर वो वेदांत खोंड है ना, तो फिर उसके घर की लाइन गई, वो पीसी पे बैठा था, तो फिर अब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वो बोल रहा कि अनलॉक करने के लिए पूछ रहा वो। नहीं सर सॉरी, उसको टेलीफोन करके बोल दो कि अब मैं अनलॉक नहीं करने वाला हूँ, सॉरी। और प्लीज क्लास में डाउट्स वगैरह पूछा करो, ऐसे दूसरों के मैसेजेस मत पहुंचाया करो। कबूतर नहीं है अपन इधर का मैसेज उधर करने के लिए। Yes, let us go ahead. Bhargavi, please ask your doubt. Some metals do not accept electrons easily. So, sir, how are they accepting in cathode reaction? हाँ, वेरी गुड। मेटल्स डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। आप यहाँ पर ध्यान से देखें, दैट द स्पीशीज which is accepting electrons is Na+. It is a cation. Metals do not accept electrons का मतलब sodium do not accept electrons. Sodium will never accept electron, but this is sodium का cation. This is an ion. It can accept electron. Either think of it in this manner कि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होने के लिए सोडियम के कटायन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, या फिर ये सोचो कि हमने कटायन को जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे दिया। सोडियम को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। लेकिन सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद वो जो बना वो चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद Na+ बनता है एंड दैट Na+ कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। टाइम आने पर वो Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, Na+ कटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। भार्गवी कमेंट। Yes, sir. Okay, good. Thank you. ऋषभ अग्रवाल, please unmute, please ask. सर ये वाटर में हो रही है ना रिएक्शन पूरी? नहीं सर, वाटर में नहीं हो रही है रिएक्शन। ये रिएक्शन मोल्टन NaCl है, वाटर है ही नहीं यहाँ पे। NaCl को हीट किया और बाद में वो मेल्ट हो गया। लिक्विड NaCl है, वाटर नहीं है। ओके ऋषभ। सर लेकिन हाँ वो तो ठीक है, वो डाउट हो गया, थैंक यू सर। और ये दूसरा Na+ का सर ऑक्टेट पूरा है ना आखिरी, तो फिर उसको एक शेल बना के सर उसके लिए हाँ, उसको उसने एक शेल मतलब बना के क्यों इलेक्ट्रॉन जरूरत? एक्सेप्ट किया, उसको जरूरत नहीं पड़ी। देखो कैसा है कि Na gives Na++ इलेक्ट्रॉन, ये खुद जो रिएक्शन है ये 2 वे अप्रोच है, दोनों साइड में रिएक्शन चलती है। मतलब ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फिर Na+ बनता है, लेकिन वो जो Na+ है उसको Cl- चाहिए स्टेबल होने के लिए। अब अगर इसका Cl- ही चला गया तो वो सोचता है कि जाने दो, अपन खुद के सॉलिड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जब तक Cl- था
तब तक सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+Cl- बना लिया, लेकिन अब उन्होंने देखा कि मोल्टन वाले में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो Cl- Cl2 बन गया और Na+ भी Na बन गया। ऋषभ कमेंट। ओके सर, थैंक यू, समझ गए। ओके गुड, ठीक है, वी विल गो अहेड। जिन लोगों के डाउट्स अभी भी पेंडिंग है, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड देन आई विल रिप्लाई यू ओवर व्हाट्सएप। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये नेक्स्ट स्लाइड अपन ध्यान से देखें, टेक्स्ट बुक से लिया हुआ स्लाइड है ये। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम हाई रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें Al2O3 से बॉक्साइट ओर, Al2O3 से हमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन सीखना है। We are required to understand the concept of concentration of bauxite ore। ठीक है, तो अपन इसको भी रीड करेंगे। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट खुद क्या है, Al2O3.2H2O या NH2O है। ठीक है, प्लीज वेट। ओके, bauxite is the main ore of aluminium. Silica SiO2, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide TiO2 are the impurities present in bauxite। अब उसमें ये impurities है। अब ये impurities कहाँ से आई, जब ओर बना तब ये impurities ऑलरेडी प्रेजेंट थी। तो इसमें देख के हम ये समझ सकते हैं कि सिलिका, आयरन और टाइटेनियम ये कुछ एलिमेंट्स है जिसका impurity है। और वो जो impurity है, वो impurity भी मेटेलिक फॉर्म में नहीं है, वो impurity उसके ऑक्साइड के फॉर्म में है। SiO2, Fe2O3 and TiO2 are the impurities present in bauxite। Separation of these impurities is done by leaching process। हाँ, ये देखो लीचिंग प्रोसेस आ गया। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम एल्यूमिनियम का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं। अब हम एल्यूमिनियम का पूरा प्रोसेस देख रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से, मेथड ऑफ सेपरेशन से लेके अपन आखिरी तक जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ सेपरेशन में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, लीचिंग प्रोसेस यूज किया जा रहा है। So separation of these impurities is done by leaching process using either Bayer's method or Hall's method। In both these methods, finally the concentrated alumina is obtained by calcination। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस क्या होता है। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दो कंसेप्ट बताए थे क्लास में। एक कंसेप्ट में था एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और एक कंसेप्ट में था लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हम कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस यूज करते हैं। इन द बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इनटू अ बॉल मिल। ग्राउंडिंग की गई है। ग्राउंडिंग का मतलब पाउडर्ड फॉर्म में उसको बनाया गया है। तो ओर जो था वो तो ऐसा सपोज इमेजिन करो कि एक टुकड़े जैसा आया, एक पत्थर के जैसा आया। अब इन अ बॉल मिल, मिल मतलब चक्की के जैसा, उसमें उसको ग्राइंडिंग कराया गया। ग्राइंडिंग करने के बाद इट इज लीच्ड। याद करो लीचिंग क्या था, दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच impurities react in a different manner and the required ore reacts in a different manner। this process is called as leaching। impurities अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी और मेटल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ओके, जो मेटल हमें चाहिए वो वाला, जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट है वो वाला। तो लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। बड़े टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेट कॉस्टिक सोडा के साथ अपन उसको हीट करते हैं अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 hours इन अ डाइजेस्टर। डाइजेस्टर मतलब वो रिएक्शन वेसल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है ये अपन डिस्कस कर रहे थे। प्लीज पे अटेंशन, बोर्ड में लेफ्ट साइड में देखो। एम्फोटेरिक मींस इट शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों एक साथ दिखाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। It reacts with aqueous solution of NaOH and forms water soluble sodium aluminate। इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं या सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। This means that bauxite is leached by NaOH solution। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ध्यान से देखें कि यहाँ पर NaOH के आगे aqueous लिखा है, मतलब ये NaOH का वाटर का सॉल्यूशन है। This is the solution of NaOH dissolved in water। और यहाँ पर क्या है Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइट है। ये
ग्राउंडेड है, क्रश्ड वाला ओर है, पाउडर्ड फॉर्म है इन अ बॉल मिल। ओर पाउडर्ड है, ओर बॉल के फॉर्म में नहीं है। बॉल मिल मतलब चक्की, उसमें ग्राइंडिंग करने के बाद जो पाउडर्ड ओर मिला वो सॉलिड था, और वो सॉलिड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, फिर NaAlO2 बना। NaAlO2 इज सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट है। फिर अब बाकी की इम्प्यूरिटी का क्या हुआ, तो आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन NaOH, तो NaOH के साथ आयरन ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता है, फिर उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लेंगे, और सिलिका जो है वो वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट बनाएगा। फिर ये एक्वस सोडियम सिलिकेट को और पानी में मिलाते हैं, and then it is cooled to 50 degree Celsius. This results in precipitate of aluminium hydroxide. Aqueous sodium aluminate ये जो बना, यहीं पे वाटर है, फिर उसको 50 डिग्री पे कूल किया। देखो स्टार्टिंग का टेम्परेचर क्या था, स्टार्टिंग का 140 150 था, इसको कूल डाउन करेंगे, रूम टेम्परेचर पे वाटर लेके आएंगे, और फिर AlOH होल थ्राइस मिलेगा। तो ये जो NaOH था ये रीसर्फेस हो गया, फिर से हमें मिल गया। ओके, इन द हॉल्स प्रोसेस, ये हो गया Bayer's process. In the Hall's process, the ore is powdered and then leached by heating with aqueous Na2CO3 in the digester to form water-soluble sodium aluminate. The impurities are filtered out. The filtrate is warmed and neutralized by passing CO2. This results in precipitation of AlOH whole thrice. तो Hall's process और Bayer process में difference क्या है? Bayer process में NaOH use करते हैं, और हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 यूज करते हैं। ओके, so this is the main difference. In Bayer's process Na2CO3 is used, sorry, in Bayer's process NaOH is used, and in Hall's process Na2CO3 is used. Guys, please give me 1 second, okay?
Yes, so I'm back with the network connectivity. I will take care of your difficulties in a moment. तो बेयर प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस का डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं. बेयर्स प्रोसेस में NaOH यूज करते हैं, हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 यूज करते हैं. फाइनल प्रोडक्ट दोनों का सेम है. ओके, सो आई विल मेंशन इट ओवर हियर. फाइनल प्रोडक्ट ऑफ हॉल प्रोसेस एंड बायर प्रोसेस इज द सेम. क्या है वो फाइनल प्रोडक्ट? AlOH होल थ्राइस. फाइनल प्रोडक्ट दोनों का एग्जैक्टली सेम है, बट स्टार्टिंग रिएजेंट अलग अलग है. स्टार्टिंग रिएजेंट इज डिफरेंट. फॉर बायर प्रोसेस इट इज NaOH एंड फॉर हॉल प्रोसेस इट इज Na2CO3. हॉल प्रोसेस में CO2 गैस पास करते हैं और बायर प्रोसेस में वाटर पास करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट. सो नाउ वेट, now you can ask your difficulties regarding this slide. Please raise your hands to ask your doubts about this particular slide. Any difficulties? Vedant, please ask. Sir, Yes, Vedant, please ask. बॉक्साइट को उसके फॉर्म में क्यों लाते हैं? वेदांत, आप क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है. बॉक्साइट की क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? Vedant, please unmute. Let's try to talk once again. हेलो Vedant, please ask. सर, हम दूसरे मेटल्स को तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म से निकालते हैं, तो हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट क्यों करवाते हैं? जहां तक मैं आपका डाउट समझ पा रहा हूँ, आप ये पूछ रहे हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, मतलब जिसको हम बॉक्साइड बोलते हैं, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों रिएक्ट करवाते हैं. तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसलिए रिएक्ट करवाते हैं जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बने और वो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट आगे चल के हमें AlOH होल थ्राइस दे. तो देखो क्या हुआ, हमने स्टार्ट किया ऑक्साइड से, लेकिन इस वाले प्रोसेस में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए था, हमें इंप्यूरिटीज हटानी थी. यहाँ पे कौन सी वाली इंप्यूरिटीज हमने हटा दी? तो यहाँ पे देखो, हमने सिलिका वाली इंप्यूरिटी, फेरिक ऑक्साइड वाली इंप्यूरिटी और टाइटेनियम ऑक्साइड वाली, ये 3 टाइप की इंप्यूरिटीज हम इजीली रिमूव कर पाए बिकॉज ऑफ दिस मेथड. तो NaOH से रिएक्शन करने का पर्पस Al2O3 से AlOH होल थ्राइस बनाना नहीं था, वो तो बन गया. NaOH से रिएक्ट करवाने का पर्पस था कि ये जो बाकी की चीजें हैं, ये बाकी की चीजें NaOH से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करवाया. यही कंसेप्ट था लीचिंग वाला. लीचिंग के कंसेप्ट में हमने ये देखा था कि केमिकल मेथड यूज होता है, ये मेथड ऑफ सेपरेशन है, दिस इज अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अभी हम एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम सिर्फ ओर को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. स्टार्टिंग वाले ओर में अगर 50% एल्यूमिनियम था, तो ये प्रोसेस करने के बाद, ये बायर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस करने के बाद उस एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि जो इंप्यूरिटीज थी वो इंप्यूरिटीज रिमूव हो गई. कौन सी इंप्यूरिटीज? सिलिका, फेरिक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, ये 3 टाइप की इंप्यूरिटीज रिमूव हो गई है, राइट. और ये क्यों रिमूव हो पाई? क्योंकि Al2O3 NaOH के साथ तो रिएक्ट करता है, लेकिन बाकी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन लिखा है, फिल्ट्रेशन से हम उसको सेपरेट कर पाएंगे. और जो सिलिका है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो उसको भी अलग तरीके से सेपरेट किया जाता है. ठीक है, तनय अग्रवाल प्लीज आस्क. सर पिछले वाले स्लाइड में डाउट था. अच्छा, पिछले वाले स्लाइड में, इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछ लो. पिछले वाले स्लाइड का डाउट व्हाट्सएप कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा. ओके ओके सर. इसमें कोई डाउट नहीं है.
Prathamesh Dharme, please ask. Hello, sir. Am I audible? Yes, Prathamesh, you are audible. Please ask. Hello, sir. सर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि एल्यूमिनियम हमको हम बॉक्साइट तो सर ये तो ये चीज तो रिलेट रहेंगे ना कि बॉक्साइट लिखा हुआ है, क्योंकि जो इंडस्ट्री रहती है वो टाइटेनियम लिखा और बॉक्साइट तीनों मतलब एल्यूमिनियम के तीनों का यूज करती है, क्योंकि गैस इंडस्ट्री में जैसे अपने एविएशन वगैरह में एल्यूमिनियम लगता है और टाइटेनियम भी कुछ इंडस्ट्रीज में लगता है। तो फिर सर ये हम बॉक्साइट को एल्यूमिनियम का यूज बोलते हैं, मतलब टाइटेनियम तो उससे भी महंगा है ना। हेलो हेलो सर। बट मैं थोड़ा बहुत आपका डिफिकल्टी समझ गया हूँ। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आपका क्या डाउट था। अपन देखते हैं मैंने ठीक से सुना या नहीं सुना। आपका ये डाउट है कि इसको एल्यूमिनियम का और क्यों बोलते हैं। इसमें आयरन भी प्रेजेंट है, टाइटेनियम भी प्रेजेंट है, थोड़ा बहुत सिलिका भी प्रेजेंट है, तो फिर हम वो टाइटेनियम को इम्प्यूरिटी क्यों बोल रहे हैं। तो उसका रीजन अपन ये समझे कि ये बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट और उसमें इम्प्यूरिटी होती है। इम्प्यूरिटी का मतलब ये नहीं कि वो कचरा है। इम्प्यूरिटी का मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी कम है। जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है उसका बोलते हैं और जो चीज ज्यादा क्वांटिटी में है उसी का एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है। उसी के लिए सारी प्रोसेसिंग की जाती है। कुछ कुछ चीजों में तो गोल्ड की भी इम्प्यूरिटी मिलती है, तो वो गोल्ड को क्या करते हैं, अलग से जमा करके रखते हैं। तो इस प्रोसेस में भी जो टाइटेनियम ऑक्साइड इम्प्यूरिटी जो बनी या फेरिक ऑक्साइड जो इम्प्यूरिटी है, वो वाली इम्प्यूरिटी के ऊपर अलग से प्रोसेसिंग की जाती है और उसको अलग से एक्सट्रैक्शन किया जाता है, उसको जाने नहीं देते ऐसे ही। बट द आइडिया ओवर हियर इज कि बॉक्साइट में एल्यूमिनियम और का क्वांटिटी ज्यादा है। Al2O3 60 to 70% होता होगा। सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये 10-15% होते होंगे। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है उसके लिए उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। टाइटेनियम भले ही महंगा है तो इसमें इम्प्यूरिटी है। इम्प्यूरिटी का मतलब क्वांटिटी कम है। क्वांटिटी कम है इसका ये मतलब नहीं उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करवाएंगे, उसका भी एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। बट बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम ओर के लिए करते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के लिए करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 is in a good quantity in this ore। बॉक्साइट में Al2O3 का परसेंटेज बहुत ज्यादा है इसलिए। आई होप जिनका डाउट था मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं। अनीश प्लीज आस्क। सो हम डाइजेस्टर में उसको इतने हाई टेम्परेचर पे हीट क्यों करते हैं बायर्स प्रोसेस में। सर रिएक्ट करने के लिए उतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती होगी, उस टेम्परेचर के नीचे वो चीजें रिएक्ट नहीं करती होंगी। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। आप ये समझो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब है कि जहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा अपने आप वाटर बन जाएगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर रिएक्शन कंडीशन देनी पड़ेगी, तभी जाके कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे 140-150 डिग्रीज की है, राइट। ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज, केमिकल प्रोसेस हो रहा है। सिर्फ दो चीजों को साथ में रखने से वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर NaOH का सॉल्यूशन लिया और उसमें Al2O3 रखा तो सिर्फ एक मिक्सचर बन जाएगा। उसको अगर रिएक्ट करना है तो रिएक्शन कंडीशन देनी पड़ेगी। दैट रिएक्शन कंडीशन इज 140 डिग्री 150 डिग्री। अनीश प्लीज कमेंट। यस यस गुड। तनय अग्रवाल प्लीज आस्क। इस स्लाइड में डाउट है तो प्लीज पूछो। हाँ सर। सर बॉक्साइट और में हमेशा ये तीनों ही इम्प्योरिटीज रहती क्या? नहीं बॉक्साइट और में हमेशा ये इम्प्यूरिटी रहती है। अभी इसके अलावा भी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटी रहती है, जैसे मड वगैरह तो सभी चीजों में इम्प्यूरिटी रहता ही है। थोड़े बहुत स्टोन के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो वाली इम्प्यूरिटीज इतनी इंपॉर्टेंट इम्प्यूरिटीज नहीं है। ये जो सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये इम्प्यूरिटीज इंपॉर्टेंट इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, फिर इसमें जैसे फेरिक ऑक्साइड लिखा है सर Fe2O3। हाँ रुक जाओ। अब जैसे ये Fe2O3 लिखा है,
वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है तो थोड़ा बहुत उसमें Fe3O4 भी होगा। मतलब ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बॉक्साइट में यही 4 चीजें मिलेंगी, कोई पांचवी चीज भी अगर आ गई तो भी उसको बॉक्साइट ही बोलेंगे। दिस इज लाइक अ मिक्सचर, दिस इज नॉट लाइक अ कंपाउंड। वाटर कंपाउंड है, उसमें कैसा हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स 2:1 ही होना चाहिए, है ना। तो वैसा बॉक्साइट नहीं है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम ज्यादा हुआ, कोई नया कंपाउंड आ गया, कोई नया ऑक्साइड आ गया तो भी चल जाता। बट ये 3 मेजर इम्प्यूरिटीज है उसमें। तनय आप कमेंट करें। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये तीनों कोई और ही इम्प्योरिटीज है। नहीं, ये तीनों तो होंगी उसमें, बॉक्साइट में ये तीनों तो रहेगी। ऐसा हो सकता है कि सपोज सिलिका नहीं है लेकिन फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड तो हो गई। अगर उसमें सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं रहा तो उस चीज को बॉक्साइट नहीं बोलेंगे, उसको कोई दूसरा नाम होगा। मतलब देखो अभी अर्थ पे अलग अलग जगह पे माइनिंग होती है, जहां जहां एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते वहां वहां पे सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड होगा। उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर कोई और मिला एल्यूमिनियम का, उसमें सिलिका भी नहीं है, फेरिक ऑक्साइड भी नहीं है, टाइटेनियम ऑक्साइड की भी इम्प्यूरिटी नहीं है, तो उसको बॉक्साइट नहीं बोलेंगे, उसको कोई दूसरा और बोलेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा भी है बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर एल्यूमिनियम का बॉक्साइट है। इसके अलावा भी दूसरे ओर्स होते हैं एल्यूमिनियम के ही, लेकिन उनको बॉक्साइट नहीं बोलते। तनय कमेंट। सर तो इसका मतलब ऐसा है कि सिलिका, आयरन, ऐसे ग्रुप ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन वन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द अर्थ कलेक्टिवली। हाँ यस, ग्रुप ऑफ मेटल्स आर फाउंड। ग्रुप ऑफ मेटल्स मत बोलो, ग्रुप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स या ग्रुप ऑफ मेटल कंपाउंड्स बोलो। दे आर फाउंड इन वन कलेक्टिव रीजन। हाँ बराबर, ऐसे ही होता है ना। अब जैसे कोई एरिया में जिंक मिलता होगा, तो जहां पे जिंक मिलता होगा वहां पे जिंक के साथ बाकी वाले एलिमेंट्स भी मिलते होंगे। लेकिन अगर वो गांव से 50 किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पे भी जिंक मिलेगा ही। जो बाकी के इम्प्यूरिटी वाले एलिमेंट्स है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो तो मेजर कंस्टिट्यूएंट रहने ही वाला है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अकोला में अलग अलग जगह पे बोरिंग है। ठीक है, मैं जो एरिया में रहता हूँ, मैं जठारपेट में रहता हूँ, तो यहाँ पे बोरिंग का पानी है, तो यहाँ का पानी थोड़ा ज्यादा खारा है, राइट। किसी दूसरी जगह पे अकोला में कम खारा होगा। मुंबई में बोरिंग का पानी तो नहीं है, लेकिन जो म्युनिसिपालिटी से पानी आता है वो बहुत ज्यादा पानी आता है और वो मीठा पानी रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन, मेटल्स का, कंपाउंड्स का क्वांटिफिकेशन पता होता है हमें। हमें पता है कि गोल्ड की माइंस कहाँ होंगी, हमें पता है कि गोल्ड की माइन जहां जहां होंगी वहां पे उसके साथ कौन सी इम्प्यूरिटी आ सकती है। तो एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट ओर है ये मेन ओर है। मेन ओर का मतलब इसकी बॉक्साइट ओर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। मतलब अर्थ में जहां पे भी एक्सट्रैक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं एल्यूमिनियम के लिए, वहां पे ये वाली इम्प्यूरिटीज तो मिलती ही है, इसीलिए उसको बॉक्साइट ओर बोलते हैं। इसके अलावा भी एल्यूमिनियम के दूसरे ओर्स होंगे जिसमें इम्प्यूरिटीज दूसरी दूसरी होंगी, तो उसको बॉक्साइट नहीं बोलेंगे। तनय कमेंट। Yeah, thank you, sir. Yes, good. Amir Ahmed, please ask. सर ये बेयर्स प्रोसेस में जब लीचिंग करते हाँ। तो उसमें NaOH के साथ में बाकी कुछ रिएक्ट नहीं करता क्या? मतलब अपने पास में सिलिका है, फेरिक ऑक्साइड है और टाइटेनियम ऑक्साइड है। बाकी कुछ रिएक्ट नहीं करता ना। बाकी कुछ मतलब ये 3 में से बोल रहे कि और चौथी चीज बोल रहे हैं आप? ये 3 में से कुछ रिएक्ट नहीं करता क्या? मतलब सिर्फ उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही रिएक्ट करता ना। हाँ यस, इसीलिए तो लीचिंग वाला प्रोसेस किया। आप आमिर, आपको लीचिंग वाला प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया। इम्प्यूरिटी रिएक्ट न करे और हमारे काम की चीज रिएक्ट करे, तभी हो गया सेपरेशन। तो NaOH लिया ही इसलिए था क्योंकि वो Al2O3 के साथ रिएक्ट करता है, और NaOH सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब रिएक्ट नहीं करता इसका ये मतलब नहीं बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता, ये वाली टेम्परेचर कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करता। सोचो, ये टेम्परेचर कंडीशन पे हमारे काम की चीज ने रिएक्ट कर दिया और बाकी की चीजें अनरिएक्टेड रह गई, तो हमारा काम हो गया।
तो इसीलिए लीचिंग प्रोसेस करने के लिए बेयर्स प्रोसेस में NaOH यूज करते हैं। आमिर कमेंट करे। सर फिर बाकी सब जो रह जाएगा रेसिड्यू, हाँ सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, हाँ तो वो भी तो ये जो रिजल्ट मिल रहा अपने को 2NaAlO2, हाँ नहीं उसके साथ तो हाँ उसके सामने वो भी तो आएगा ना। उसके सामने वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आयरन ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होता, इट इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो ऐसा सोचो NaAlO2 जो है वो पानी में डिसॉल्व हो गया और आयरन ऑक्साइड जो था वो इसमें डिसॉल्व ही नहीं हुआ। अगर इसमें डिसॉल्व ही नहीं हुआ तो उसको फिल्टरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। फिल्टरेशन का प्रोसेस हाँ समझ गया सर। प्रोसेस है। ठीक है, वेरी गुड आमिर। हाँ समझा। गुड, थैंक यू। मिहिर प्लीज आस्क। सर कैल्सिनेशन मतलब समझाओ ना एक बार। कैल्सिनेशन ठीक है, अभी अपन करते हैं, अभी कोई चीज हम डिस्कस करेंगे। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। जिनके डाउट्स बच गए व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करना, प्लीज डोंट कॉल। ठीक है, तो अब इधर देखो, इधर स्टेटमेंट लिखा है इन हॉल्स प्रोसेस। तो ये जो रिएक्शन है अगले स्लाइड में, ये हॉल्स प्रोसेस की रिएक्शन है। पिछले वाले स्लाइड पे हमने क्या देखा था, किसकी रिएक्शन थी, NaOH के साथ रिएक्शन थी। यहाँ पे हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 के साथ रिएक्शन है। Al2O3.2H2O plus Na2CO3 gives NaAlO2, CO2 रिलीज हो गया और वाटर बन गया। ये जो NaAlO2 है ये वही है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। पिछले वाले रिएक्शन में भी यही बना, ये वाले रिएक्शन में भी यही चीज बनी है। ओके, सो 2NaAlO2 plus 3 water plus CO2 gives 2AlOH whole thrice plus 2 Na2CO3। इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, पिछले वाले रिएक्शन में अपन पीछे जा भी सकते हैं ना इसमें। पिछले वाले रिएक्शन में जो AlOH whole thrice बन रहा था वो चीज एक्वस था, मतलब वो सॉल्यूशन बन रहा था। इधर देखो वाटर है तो वो चीज डिसॉल्व है पानी में। ये वाली जो रिएक्शन है इसमें वो डिसॉल्व नहीं है, तो AlOH होल थ्राइस जो है वो सेटल डाउन हो गया। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस दिखाई दे रही है हमें, ये दो रिएक्शंस रिलेटेड है हॉल्स प्रोसेस से। ओके, these two reactions are related with Hall's process। एंड अब ये जो AlOH होल थ्राइस मिला, दोनों चीजों में AlOH होल थ्राइस मिला, बेयर लो प्रोसेस ले लो या हॉल्स प्रोसेस ले लो, उसको फिल्टर करते हैं, वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं एंड देन कैल्साइंड बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन एल्यूमिना। तो AlOH होल थ्राइस को हीट करते हैं, Al2O3 plus 3H2 बनता है। तो इसमें अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है कि Al2O3 is the starting compound, at the end of the process Al2O3 is formed। बराबर, शुरू भी Al2O3 से किया और प्रोसेस खत्म होने पर भी Al2O3 आया। तो ऐसा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है that Al2O3 is getting concentrated impurities such as iron oxide, silica SiO2 and titanium TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड जो था, are getting removed। तो वो चीजें रिमूव हो रही है, इम्प्यूरिटीज रिमूव हो रही है। तो शुरुआत हम Al2O3 से कर रहे हैं, एंड भी हमने Al2O3 से किया, लेकिन इस प्रोसेस में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, प्यूरिफिकेशन नहीं हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। राइट, प्यूरिफाई होना मतलब कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाना, 100% कॉन्सेंट्रेशन आ जाना, 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं आता है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम कैल्सिनेशन हो रहा है। तो अभी किसी ने डाउट भी पूछा था कि कैल्सिनेशन का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो एंड देन कैल्साइंड। ठीक है, तो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, इसको अपन डिलीट कर देते हैं। एक होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग।
ये हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया है। कैल्सिनेशन होता है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग करते हैं इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस वाले प्रोसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, इस वाले प्रोसेस में हम लोग कैल्सिनेशन यूज कर रहे हैं, और एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये यहाँ पे एयर लिखा होना चाहिए, एयर लिखो या ऑक्सीजन लिखो एक ही बात है, क्योंकि एयर का ऑक्सीजन रिएक्ट करने वाला है और उससे Al2O3 बन गया, वाटर अलग से निकल गया है। ठीक है, एक्चुअली वेट प्लीज वेट, ये कैल्सिनेशन लिमिटेड है एंड रोस्टिंग अप्लाई है, तो यहाँ पे एयर नहीं होना चाहिए। दिस इज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट, सॉरी। Yes, now this is better. Calcination is in limited supply of oxygen and roasting is in adequate supply of oxygen. इसको डिलीट करके फिर से लिख देते हैं। Calcination means heating in limited quantity of oxygen, and roasting means adequate quantity of oxygen. So this is roasting, this is heating. यहाँ पे air नहीं है, this is limited supply of oxygen. ऐसे ही उसको हीट कर दे, यहाँ पे हीटिंग के लिए आप डायग्राम बना, मतलब ऐसा सिंबल रख सकते हो। This is called as delta, and delta is the symbol for heating. ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस हैं, ऊपर के दो रिएक्शंस, ये हॉल्स प्रोसेस की है। लर्न करना है, सारे रिएक्शंस लर्न करना है, जितने भी टेक्स्ट बुक में रिएक्शंस गिवन है उनकी कंडीशंस के साथ आप लोगों को लर्न करना है। और पिछले वाले रिएक्शन में, पिछले वाला जो मेथड था बायर्स प्रोसेस, उसमें जो दो रिएक्शंस थी, वो दो रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस और ये लास्ट वाली रिएक्शन कॉमन है। AlOH होल थ्रेस जो है उसको अपन ने Al2O3 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो डिफिकल्टीज, एनी कंसर्न्स, एनी डाउट्स? ऋषभ अग्रवाल, प्लीज आस्क। सर बोलिए ऋषभ। Sir, if the CO2 is formed in the first process, like Al2 plus that first reaction, then why do we need to supply CO2 in the second reaction externally? हाँ, so CO2 is supplied in the reaction externally का मतलब यही है कि that reaction is again carried forward. So the idea over here is that you can either trap that CO2 and then again introduce it in the same container, or you can just let that container be as it is. उससे हो ये रहा है कि NaAlO2 is reacting with CO2. So this is like a sequential reaction. एक टर्म यहाँ पे अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं sequential reactions. Sequential reactions कैसी होती है? A gives B plus C, for example. ठीक है, A gives B plus C. अब ऐसा इमेजिन करो कि कोई दूसरा स्टेप है जिसमें B plus C मिलके B plus E दे रहे हैं। तो या तो इसको A gives B plus C and B plus C gives D plus E अलग से लिखो, या फिर इसको ऐसे डायरेक्टली A gives D plus E भी लिख सकते हैं अपन, because exact same things are being repeated. B plus C is the product and B plus C is the reactant. तो वहां सिर्फ ये बता रहे हैं कि CO2 is getting produced in this reaction. CO2 अलग से जनरेट हो रहा है और वही CO2 अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं. There is no problem with that. ऋषभ, comment. So sir, can we write Al2O3 dot 2H2O plus Na2CO3 gives out 2AlOH whole thrice plus Na2CO3? Yes, we can write that. हाँ, definitely we can write that. But स्कूल के एग्जाम में थोड़ा कंसर्न आ जाएगा. For school exams, you cannot write that. But essentially,
these two reaction means one and the same thing. जो आपने बोला और जो बोर्ड पे लिखी है दो रिएक्शंस, वो एक ही चीज बता रहा है. बोर्ड पे जो लिखी है उसमें सिर्फ अलग ये इंफॉर्मेशन मिली कि बीच में NaAlO2 बना. जैसे ये जो सीक्वेंशियल रिएक्शन मैंने बताया ना, तो इसमें B and E are called as intermediate. स्पेलिंग क्या है? intermediate products. B and E are called as intermediate products. तो जो आप अगर डायरेक्टली रिएक्शन लिखोगे तो उसमें आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स नहीं मेंशन कर रहे हो, वो चल जाएगा, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलेगा. ऋषभ कमेंट. Okay, sir. Thank you. Got थैंक it. यू ऋषभ. यस, अनीश प्लीज आस्क. सर वहाँ पे पर एक फर्क आ रहा है ना सर, वहाँ पे 2H2 और यहाँ पे 3H2 है, तो नहीं तो सर वो- हमको एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना पड़ रहा है. हाँ यार, एक्चुअली कैसा है ना, वहां पे एक्स्ट्रा वाटर ऐड करना पड़ रहा है, ये आप बराबर बोल रहे हो, लेकिन आप ये सोचो ना कि अगर एक्स्ट्रा वाटर सपोज नहीं है अपने पास में, तो NaAlO2 कम रिएक्ट करेगा. सपोज दो NaAlO2 को दो वाटर चाहिए, मतलब ऐसा सोचो 50 मॉलिक्यूल NaAlO2 के बने और 50 मॉलिक्यूल वाटर के बने. ठीक है, फिर 50 मॉलिक्यूल वाटर के लिए कितने मॉलिक्यूल, 50 मॉलिक्यूल्स NaAlO2 के लिए कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे? 75 मॉलिक्यूल्स वाटर लगेंगे. अनीश, आर यू विथ मी? यस सर. तो जैसे 50 के लिए 75 लगते, तो 75 की जगह अगर 50 है तो NaAlO2 के 50 से थोड़े कम रिएक्ट कर जाएंगे, बराबर? यस सर. तो हम उसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि वो रिएक्शन तो चलेगी आगे, लेकिन थोड़ा सा रिएक्टेंट कम यूज होगा, मतलब थोड़ा सा रिएक्टेंट बच जाएगा. तो B प्लस सी गिव्स D प्लस ई में, क्योंकि C एक्स्ट्रा चाहिए था B को पूरा रिएक्ट करने के लिए, तो C कम होने की वजह से थोड़ा सा B अनरिएक्टेड रह जाएगा. समझा अनीश? यस सर. तो जो ऋषभ बोल रहे थे वो कंसेप्चुअली करेक्ट था. A प्लस बी, A गिव्स B प्लस सी, तो B प्लस सी गिव्स D प्लस ई, तो डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं उस चीज को. फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर अपन ऐसा तोड़ के लिखे तो उससे बैलेंसिंग समझ में आ रही है, और बैलेंसिंग से यहाँ पे ये बेनिफिट मिला कि 2 को 3 लगते हैं. अगर इसके सिर्फ 2 अवेलेबल है तो इसके मेरे ख्याल से 2/3 रिएक्ट कर जाएंगे और 1/3 बच जाएगा. अनीश, क्लियर हुआ है? यस सर. गुड, वेरी गुड, थैंक यू. हम आगे बढ़ते हैं, एक और स्लाइड कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास फॉर टुडे. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना है. लेट्स टेक दिस स्लाइड इन द नेक्स्ट टर्न. ओके, ये रीड करके आना. होमवर्क सुन लो, प्लीज पे अटेंशन. होमवर्क नीचे लिख रहे हैं, कभी होमवर्क देते नहीं है, आज दे देते हैं. रीड बॉक्साइट फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रॉपरली. एकदम अच्छे से बॉक्साइट के बारे में रीड करें. बॉक्साइट में 2 पार्ट्स है. पहला पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली लीचिंग वाला प्रोसेस है, उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है. और सेकंड वाला प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन. तो ये वाली चीज भी आप लोग एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से रीड करके आएंगे. टॉपिक रीड करके आएंगे, क्लास में पढ़ाने में थोड़ा इजी हो जाएगा, हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं. ओके, एंड देन आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. किसी को कोई डाउट इसमें, जो अभी तक जितना पढ़ा है आज के स्लाइड्स में, किसी को कोई डाउट? वी आर अगेन मीटिंग टुमारो इवनिंग. कल शाम में फिर से हमारा क्लास है. ओके, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास. And please, it is a sincere request to everyone that do not share the link of the classes with random students. Okay, this is a genuine request from my end. I will end the class now. Please take care of yourselves.